start chapter number 5, that is circular motion. First of all, what is circular motion? If our body is moving in a circular path, it can be any body. It can be our earth that is rotating about the sun. It can be our moon that is rotating about the earth. Or it can be any satellite orbiting around the earth, or it can be even electron orbiting around the nucleus. All these are exhibiting circular motion, and the famous name of the circular motion is the angular motion. इस टर्म में जो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमको डिफाइन करने की ज़रूरत है, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अभी तक आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ी, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को सिंपल डी से डिनोट किया और दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अब यहाँ पर एंगुलर मोशन में दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट वर्किंग. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर टर्म दैट इज़ नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? सपोज that a body is moving in a circular path around a fixed point and that fixed point is taken as the center of the circle. और आपको पता है कि सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक हर जगह सेम डिस्टेंस होता है, दैट इज़ नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. हम सपोज करते हैं दैट एट इन द टाइम, सपोज दैट टाइम t is t1. At that time the body is at the position p1 and this position is making an angle theta with the reference line. After some time t, the body is now at position p2 and the time when the body is at p2 is noted to be t2. तो आप यहाँ देखिए t1 जब टाइम था तो बॉडी p1 पोजीशन पर थी, और जब कुछ टाइम चेंज होकर t2 हो गया तो बॉडी ने पोजीशन p2 अडॉप्ट कर ली. अब p2 जो है वो p1 के साथ कुछ एंगल बना रहा है एंड दिस एंगल इज टेकन एज द डेल थीटा. तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि दैट वाइल मूविंग फ्रॉम द p1 टू p2, तो ये जो एक आर्क बन रही है, दिस आर्क S is now making or subtending an angle del theta at the center. ये आर्क P1 से P2 की तरफ. Now you can note that the direction is in anti-clockwise direction. और ये जो आर्क है P1 से P2 की S arc, this is making an angle del theta at the center. So this del theta is known as angular displacement. और इस हिसाब से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं that the angle subtended at the center of a circle by a body moving along the circumference in a given time is called the angular displacement and that is denoted by del theta. हम इस angular displacement को शो करते हैं by using del theta. Now next is the sign convention. As you know, while the body is moving along the circumference of the circle, so the motion can be in two directions. It can be clockwise or it can be anti-clockwise. By convention, the anti-clockwise rotations are taken as positive. तो हम कह सकते हैं कि anti-clockwise rotation जो हैं उसमें आपके पास del theta is taken to be positive and clockwise rotations में आपके पास जो del theta जो है that will be taken as negative. Now next is the direction of the del theta. Direction of the del theta, what can be the direction of the del theta? हम कैसे find out करेंगे? So simply what you have to do, you have to grasp the axis of rotation. This is the axis of rotation in your right hand and your curling fingers must be in the direction of the rotation. If the direction is in anti-clockwise, then your fingers must be directed or pointed in the anti-clockwise direction and your erected thumb there will give the direction of the एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर सपोज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, तो फिर हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, कर्ल्स जो है हमारी फिंगर्स के वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो एंड द डाउनवर्ड डायरेक्टेड थंब दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द राइट हैंड rule. Simple rule, right hand rule. What you have to do, you have to grasp the axis of rotation in your right hand such that the curling fingers are in the direction of the rotation. Then the erected thumb that will give the direction of the angular displacement. Clockwise rotation, upward angular displacement. Anti-clockwise rotation, upward displacement, and the clockwise rotation, downward angular displacement. Now next is the unit. To measure the angular displacement, we adopt different units. It can be degree, it can be revolution, और it can be रेडियन. आपके पास 3 यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए. डिग्री है, रेवोल्यूशन है, रेडियन है. सबसे पहले डिग्री. हम सबको पता है कि अगर ये आपके पास रेफरेंस एक्सिस है और कोई बॉडी मूव करती है, तो अगर कोई बॉडी यहाँ पर है देन दैट इज़ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द रेफरेंस एक्सिस. जैसे वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा. यहाँ पर 90 का एंगल हो जाएगा, यहाँ मूव कर लेगी तो 180 का हो जाएगा,
इधर चली जाएगी तो 270 का हो जाएगा, और अगर वापस यहाँ पर आ जाएगी तो 360 का हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ़ अ बॉडी इज मूविंग और एग्जिबिटिंग अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन देन एक्चुअली इट इज़ कवरिंग 360 डिग्रीज। तो एक पूरे सर्कुलर पाथ में आपके पास 360 डिग्रीज होते हैं। अब रेवोल्यूशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। अगर इसी केस में रेवोल्यूशन को डिस्कस करें तो यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ पर आने के लिए एक बॉडी ने एक रेवोल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। नाउ व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या है? सपोज द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, हम इसको आर से कह सकते हैं। सपोज दैट इनिशियली बॉडी वाज एट दिस पोजीशन P1, और ये बिल्कुल रेफरेंस एक्सिस के साथ है। आफ्टर सम टाइम T, बॉडी ने पोजीशन P2 अडॉप्ट कर ली सच दैट P1 P2 का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आर्क लेंथ P1 से P2 की, जो कि आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ही है, ये आर्क लेंथ जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी दैट विल बी नोन एज 1 रेडियन। Or we can also say that if the body is moving in a circular path and the arc length covered by the body that is equal to the radius of the circle, then that arc length, then the angle subtended by that arc at the center, that will be equal to 1 radian. So these were the definitions of the degree, revolution and radian. And next is the dimension. As you can see that the unit of the angular displacement is the unit of the angle. डिग्री है, रेवोल्यूशन है या रेडियन है। सो दैट्स वाई द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा इज डायमेंशनलेस। इट इज़ हैविंग no dimension, it is dimensionless. So these were the some important points about the angular displacement. I am repeating again, angular displacement that is denoted by the theta and the change in displacement that will be known as del theta. अब साइन कन्वेंशन में दो डायरेक्शंस हो सकती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। रोटेशन की दो डायरेक्शंस होती हैं, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिवली आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिवली आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज सिंपली राइट हैंड रूल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द यूनिट्स। We commonly use 3 units of the angular displacement. Number 1 is the degree, number 2 is the revolution, and number 3 is the radian. We can have their equivalence relations also. Now last thing is the dimension. Angular displacement is a dimensionless quantity. So that's all about the angular displacement. In relation to the topic angular displacement, we are having two important proofs. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट प्रूफ दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज प्रूफ दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसके लिए अगेन हमें डेफिनेशन ऑफ द रेडियन को कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये आपके पास वो सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर बॉडी जो है वो मूव कर रही है। दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, इनिशियली बॉडी वाज एट दिस पॉइंट, दिस वाज द P1, और फिर दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने कहा कि P1 से बॉडी ने P2 तक मूव किया सच दैट द आर्क लेंथ S दैट इज़ इक्वल टू द रेडियस। यहाँ के पास यहाँ P1 से P2 तक का जो डिस्टेंस है दिस इज़ द आर्क लेंथ S, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द एंगल subtended by this arc at the center। तो हमने कहा कि ये आपके पास थीटा है। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन, थीटा दैट कैन बी टेकन एज arc length, that is arc length divided by radius of circle। तो यहाँ पे अगर आप इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करें, आर्क लेंथ आपके पास s है, दिस आर्क लेंथ कैन बी इक्वल टू रेडियस। अगर आप ये आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल लिखें और नीचे भी आर ही आ जाएगा तो आर कैंसिल, देन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, रेडियंस में आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आप इस रिलेशन को थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा, और ये वही रिलेशन है जो कि हमने प्रूव कर दी है। यहाँ पे हम रिलेशन में इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस रिलेशन कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं दैट अगेन वी आर कंसीडरिंग अ सर्कुलर मोशन।
दैट द बॉडी इज़ रोटेटिंग और एग्जिबिटिंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हमने कहा कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इनिशियली बॉडी वाज एट दिस पॉइंट, एट दिस पोजीशन, और कुछ टाइम के बाद इस बॉडी ने जो है वो एक आर्क लेंथ कवर की, बट एट दिस मोमेंट द आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू द कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब कि बॉडी यहाँ से चली है और पूरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एग्जिबिट करके वापस दोबारा इस पॉइंट पर आ चुकी है। तो उस केस में अगर आप थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर में वैल्यूज़ पुट करें तो आर्क लेंथ, जो कि लास्ट में हमने देखा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने एस आर्क लेंथ कहा था, बट इन दिस केस द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज़ इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पे इस केस में आर्क लेंथ एस जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, 2πr के। तो एस दैट विल बिकम इक्वल टू 2πr, और नीचे भी आ रहा है तो आपके पास थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 2π, और ये 2π जो है जी आपके पास आंसर जो आ रहा है ये आपके पास रेडियंस में आ रहा है। ये तो आपने एक रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमने याद करें थोड़ा सा कुछ मिनट्स पहले हमने डिस्कस किया डिग्री को, कि जब एक बॉडी एक पॉइंट से शुरू होती है और कंप्लीट सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करके वापस उस पॉइंट के ऊपर आती है तो कितना हम एंगल जो है वो कवर करते हैं, दैट एंगल थीटा दैट बिकम्स इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, और उसे हमने कहा कि डिग्रीज होते हैं उसमें 360 डिग्रीज। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द थीटा, दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ द थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 2π रेडियन दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 1 रेडियन अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें, 1 रेडियन दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज ओवर 2π, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। सो दिस इज़ आर नेक्स्ट प्रूफ, ये हमने प्रूव कर लिया। याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें हमने दोनों प्रूफ्स जो हैं वो हमने एक ही तरीके से जो है वो सॉल्व किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि पोजीशन P1 से P2 की तरफ बॉडी ने मूव किया, एक आर्क लेंथ एस कवर की,